So let me start with a little basic brief about our company, because why not, since you've all joined. Basically, our company provides two tools, Task Tracker and Sales Tracker. Task Tracker helps in managing everyday tasks and making your work easier, whereas Sales Tracker is a sales management tool that captures leads, tracks sales teams, keep a track of sales performance. So together, they're a game-changing duo for your business. Now let's begin with our webinar. In today's competitive market, sales team को कई challenges face करने पड़ते हैं, due to which deals को close करना बहुत difficult हो जाता है. Slow deal closure not only impact revenue but also the morale of the team members, which affects overall productivity. And अगर आप भी यही problem face कर रहे हैं, तो you are at the right place today. In this webinar, I will share some very basic strategies which will help you and your company to improve sales performance, and I'm sure it will help you as well. So, starting with the very first strategy, qualify your leads at a very early stage. So, sales process में सबसे important step होता है lead qualification, because qualifying your leads quickly at a very first stage saves you both time and resources. This ensures कि आपने अपने efforts उन prospects पर ही focus करने हैं जो आपको लग रहे हैं कि they are actually gonna seriously be interested in your product and will eventually buy your product. So आप उन लोगों के ही पीछे जाएंगे जो फर्स्ट कॉल में ही आपको कन्विंसिंग लगते हैं कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट खरीद लेंगे. नाउ ये हमारे मूड पे डिपेंड नहीं करना चाहिए. इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम करने चाहिए जिससे हम ये डिफाइन कर सके कि लीड क्वालिफाइड है कि नहीं है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर. लेट्स से you have a fitness center, let's call it Fit Life, जो अपने जिम मेंबर्स को जिम मेंबरशिप सेल करता है. नाउ so if there is a sales team wasting a time on the leads who have never interested in buying a membership, वो बस उनका टाइम और एफर्ट दोनों वेस्ट करेंगे. So solution for this, using lead qualification tool and asking the right questions, FitLife was able to identify serious prospects early and utilize their efforts where it will matter. Now, what are those questions? उन्होंने define करा कि what fitness goals do you want to achieve? अगर किसी यूजर ने ये डिफाइन कर रखा है कि मुझे ये अचीव करना है, तो ऑलरेडी उन्होंने जर्नी की तरफ फर्स्ट स्टेप ले रखा है. आपको उन्हें कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, आपको उनको ट्रेन नहीं करना पड़ेगा. When do you want to join the gym? Now, अब अगर वो बोले कि मुझे 3 महीने बाद ज्वाइन करना है, again there is no point following up today and day after for that. You have to follow up 3 months after that. And then, have you been a member of the gym before? So now this is a very good question, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि prospect अगर पहले भी gym membership ले चुका है, then he is willing to spend money on himself. So you then can actually take out or rather calculate कि आप अपना टाइम इस आदमी पर या इस prospect पर, eventually इस lead पर waste करें या नहीं करें. और इसको अगर हम flip side पे देखें तो इन question से आप ये define कर सकते हैं कि ये आपकी qualified lead है कि नहीं है. Next आ जाते हैं the strategy which is a very underrated strategy is personalize your approach. अगर हम same script, same dynamics, same हर बार से अलग-अलग लोगों के लिए use करेंगे, तो वो हमारे business में sales capture नहीं कर पाएंगी. So what does that mean? Generic approaches are of no use in today's world. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हर प्रॉस्पेक्ट की इंडिविजुअलिटी को ट्रीट किया जाए और उसकी स्पेसिफिक नीड्स और चैलेंजेस को देखा जाए, उनकी ज़रूरतों को समझा जाए. And therefore, a personalized approach makes your prospect feel that you understand their business and their requirements. So in the starting phase of a company, I'll be very candid with you, और मैं अपना एक खुद का experience share करती हूँ कि when we were at a very early stage, we used to send generic mails to everyone, and ये हम cold emails की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो हमें कई बारी अपनी request भेज देते, demo request भेज देते और इंटरेस्ट दिखाते थे प्रोडक्ट में, तो उनको हमने फिर हम जेनेरिक ईमेल भेज देते थे, ड्यू टू विच हमें कोई डील क्लोज ही नहीं कर पाते थे, बहुत टाइम लग जाता था. एंड देन वी हैड टू रियली डू लॉट्स ऑफ फॉलो अप्स विद देम
चाहे वो ईमेल के थ्रू, चाहे वो फोन कॉल्स के थ्रू. एंड देन वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी और क्यों वो हमारी प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे थे. बट व्हेन वी स्टार्टेड टू अप्रोच देम बाय सेंडिंग पर्सनलाइज्ड ईमेल्स, जैसे कि प्रोस्पेक्ट की स्पेसिफिक नीड्स को फोकस करना, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर वो मार्केटिंग इंडस्ट्री के तो ये उनके पेन पॉइंट्स हैं और ये हमारा टूल इस तरह से उनकी हेल्प कर पाएगा. या अगर वो किसी तरह के ट्रेडर या वेंडर थे तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या होंगी. And then our response rates and deal closures got improved massively. And so therefore I think it's tested that personalized templates help you understand the client's business challenges and you are able to give the solutions according to them. It does take time to train your sales people कि उनको पर्सनलाइज मैसेजिंग कैसे करें, बट उसके लिए बहुत ईजी तरीका है कि आप 3 या 4 कैटेगरीज में अपने क्लाइंट प्रोफाइल्स को डिफाइन करिए और उनकी सेल्स स्क्रिप्ट, उनकी मैसेजिंग उन 4 कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली उनको यूज़ करने के लिए बोलिए. तो जिससे वो यूज़ केसेस भी उसी तरह से बेचेंगे. हर सेल्स एजेंट के पास एक रेफरेंस पॉइंट होगा कि अगर ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आपके ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए है या कम प्रोडक्ट के लिए, तो वो अकॉर्डिंगली उस सेल्स पेज को डिफाइन कर पाएगा. Next, we are in the create a sense of urgency. Now, what does that mean? I know it sounds a marketing gimmick और बहुत लोग ये यूज़ करते हैं कि आज ही नहीं खरीदा तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा, या ये रेट आज ही वैलिड है, कल नहीं होगा, कल आपको इसे दुगना पे करना पड़ेगा, या ये डिस्काउंट आज ही एप्लीकेबल है. All these tactics are actually used to shorten your sales cycle. So by creating urgency, you can motivate your prospects to take decisions quickly. If prospects feel कि offer तो बस limited time के लिए है, then instead of delaying, they will actually take action. तो अगर उन्होंने already they have made up their mind, right, कि ये product मुझे चाहिए, they are 70% there. That 30%, some sort of give actually convinces them to close the deal faster. So that urgency factor plays a big important. मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ. सपोज यू आर रनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, है ना, एंड यू ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स मेनी कस्टमर्स वर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू मेक द डिसीजन. सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गिव लिमिटेड टाइम ऑफर्स और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, जैसे कि गेट 50% ऑफ ऑन योर मोबाइल्स और लैपटॉप, समथिंग लाइक दैट. एंड ऑफ कोर्स 50% इज टू मच, बट ऐसा होता है. And you can also use scarcity tactics ki only 5 items left in stock, hurry up, buy now, also send some emails regarding these offers. इससे क्या होगा, your customers will start taking decisions quickly and which will ultimately boost your sales. और दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होता ही है. अगर जैसे आप लिखते हैं 5 items left in the stock, आपकी वैल्यू क्रिएशन जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है आपके प्रोडक्ट के लिए. क्योंकि आपको लगता है कि अरे सब लोग खरीद रहे हो और सिर्फ 5 ही आइटम बचे, तो यू विल इवेंचुअली ट्राई टू बी इन द लीड विद अदर्स. Use sales management tools. Now, be it our own BR tool, sales tracker, but there are other tools also available in the market to automate the process. Using effective sales management tools streamline your sales process, and basically they help you to manage your leads efficiently. Now, through such tools, you can track your lead details, automate their follow-ups. आप अपने sales pipeline को effectively manage कर सकते हैं, and all these ultimately helps in faster deal closures. तो sales management tool हर तरह से आपकी help करता है. ना सिर्फ वो आपके leads कहाँ एक जगह capture करने में manage करता है, but then at the same time आपने कितनी बार उनके साथ follow-up करा है ये capture करने में manage करता है. उनका इंटरेस्ट लेवल किस तरह के प्रोडक्ट में ये रिकॉर्ड करने में भी आपको मैनेज करता है. कई बार हमने देखा है कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन तरह का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, समटाइम्स दे आर प्रोवाइडिंग ब्रिक्स ऑल्सो, दे आर प्रोवाइडिंग टाइल्स ऑल्सो, एंड देन दे आर प्रोवाइडिंग अदर फिनिशिंग आइटम्स ऑल्सो. नाउ दिस प्रोडक्ट जो अलग अलग है वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे अलग अलग टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है. नाउ सेल्स टीम एक बार ही उन्होंने अप्रोच करा कि सर आप हमसे ब्रिक्स ले लीजिए, तो अब पता चला कि ब्रिक्स ऑलरेडी वो कहीं से परचेज कर चुके हैं. नाउ देयर इज अ स्कोप ऑफ सेलिंग द टाइल्स आल्सो टू द सेम प्रोस्पेक्ट, राइट?
बट अगर वो आपने रिक्वायरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी है कि आज ये कंस्ट्रक्शन की स्टेज में है और फिर वो फिनिशिंग की स्टेज में नेक्स्ट 3 months के बाद आएगा एंड दैट इज द टाइम वी नीड टू डू द फॉलो अप, देन देर इज अ प्रॉब्लम. एंड अगर आप एक कोई इफेक्टिव सेल्स मैनेजमेंट टूल यूज करते हैं तो आप वो फॉलो अप अपना रिमाइंडर सेट कर सकते हैं सो दैट योर सेल्स टीम इज एक्चुअली एबल टू रीच आउट टू देम एंड उसमें आपकी रिकॉर्ड हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट के लिए मुझे उन्हें रीच आउट करना है इस टाइम तक. सो एंड देन द मैनेजर्स कैन ऑल्सो सी कि वो उसने आदमी ने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने एक्चुअली उनको फॉलो अप करा भी कि नहीं करा. सो बिजनेस लूज करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और बिजनेस इंक्रीज करने के चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं. So I would love to mention one of our clients over here, Priyanka Sachdev. She's the founder of Core and Pure, and so she has been using Sales Tracker since last 1 year. And as you can see, how it has helped her to manage sales team through unique features that we offer, like Team Beat, automated follow-up reminders, sales team tracking. And if you want to improve your sales cycle, also you can try our tool. I'll mention the details later in the chat box. Next, let's come to work on feedbacks. Now, हम एक बारी सेल्स करने के बाद क्या करते हैं अपने सेल्स प्रोसेस में? हम कहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो that is also an important part of your sales. क्योंकि आपको इवेंचुअली अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनानी है और वो रिलेशनशिप इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एक बिजनेस आया और वो हमने क्लोज कर दिया. वो रिलेशनशिप इसलिए ज़रूरी है जिससे हमें कांस्टेंट बिजनेस आता रहे और उस कांस्टेंट बिजनेस के लिए हमें फीडबैक की ज़रूरत है और अगर कोई हमें नेगेटिव फीडबैक मिला है उसे पॉजिटिव में भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत है. So it is natural to have positive as well as negative feedback in the sales process, but handling them proactively shows your expertise also. So this is a critical stage in your sales process where you can respond quickly, address any concerns, answer their questions, because ये show करता है कि how much do you value your customer? Are you passionate about improving their business? आपने सेल करी तो वहां पर तो सिर्फ आप ही का बिजनेस इंप्रूव हुआ, बट जब आपने उन्हें क्वालिटी सर्विस दी अपने बिजनेस के, तब आपने उनके बिजनेस के बारे में भी केयर करी. एंड दैट इज व्हाट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग. इफ यू प्रिपेयर सॉल्यूशंस टू फीडबैक्स इन एडवांस, यू कैन क्विकली एड्रेस प्रॉस्पेक्ट्स कंसर्न जो आपको डील्स क्लोज करने में हेल्प भी करते हैं. तो दो तरह की चीजें हो गई. एक क्लाइंट का फीडबैक क्या आया, उससे आपने हेल्प करा और वो आपको रेकरिंग बिजनेस देता रहा. दूसरा फीडबैक आया कई बारी कि क्लाइंट ने खरीदने से पहले आपको फीडबैक दिया कि अरे आपका तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, मुझे दूसरी जगह से सस्ते में मिल गया इसलिए मैं आपसे नहीं खरीद रहा, और आपने वो पॉइंट रिकॉर्ड कर लिया. अब आपने जैसे जैसे देखा कि आपके बहुत सारे क्लाइंट्स इसलिए आपकी डील्स नहीं क्लोज हो रही हैं क्योंकि दे फाइंड कि योर प्रोडक्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन द अदर्स. आपने मार्केट रिसर्च करी और जब आपने मार्केट रिसर्च करके कंक्लूड करा तो एक्चुअली में सेम प्रोडक्ट मार्केट में सस्ते में मिल रहा था एंड यू रिवाइज्ड योर रेट्स सो दैट यू कुड क्लोज द डील्स फास्टर और आपका कहीं भी बिजनेस नहीं लूज हो. तो ये फीडबैक रिकॉर्ड अगर आप नहीं करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली टेक अ डेटा ड्रिवन अप्रोच. और इसलिए सम ऑफ द सॉल्यूशंस आर लाइक creating common feedbacks and preparing response for each one. You know, आप इस तरह का एक टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हैं so that your sales team is actually able to record कि कस्टमर ने क्यों नहीं खरीदा, उसका फीडबैक क्या है, और कस्टमर ने खरीदने के बाद क्या फीडबैक दिया वो भी रिकॉर्ड कर लिया. So listen to your customers actively, understand their objections, understand what are their concerns, answer those concerns, and then being prepared for those concerns is very very important. Eventually be empathetic to them. उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए. ये मत सोचिए कि वो आपके पास क्वेरी लेकर आए हैं और कंप्लेन करने आए हैं. उनकी कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हुई आपके प्रोडक्ट से और इसलिए वो डील करना ज़रूरी है. And additionally, it's important to reassure your buyers that you are there to support them even after they purchase your product. नेक्स्ट हम मूव करते हैं फॉलो अप एक्टिवली. नाउ हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम कितना फॉलो अप करेंगे तो हमारा क्लाइंट इरिटेट हो जाएगा, हमसे बात नहीं करेगा, हमारे प्रोडक्ट को भूल जाएगा. बट फॉलो अप इज द की.
अब वो फॉलो अप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है जिससे आपका क्लाइंट इरिटेट नहीं हो, वो आपको अपने प्रोडक्ट को लेकर उस चीज़ को देखना पड़ेगा। मगर जैसे आप D2C के केस में अगर आप इंस्टाग्राम पे ही देख रहे हैं, एक ही तरह का रील आपको 10 से 15 बार देखने को मिलता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट आपके जिसे कहते हैं ना माइंड में पूरा अच्छे से स्टोर हो जाता है कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। तो कंसिस्टेंट फॉलोअप शुड बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेल्स प्रोसेस। कई बार डील्स सिर्फ इसलिए लूज हो जाती है क्योंकि टाइम पे फॉलोअप नहीं होता है। With structured and personalized follow-up, you will give relevant, you stay relevant to your prospects, and it gently pushes them to make the decision. जैसे मैंने आपको पहले वाले केस में ही बोला, आपने उन्हें ब्रिक्स भेजी, टाइल्स के लिए फॉलो अप ही नहीं करा, देयर यू गो, योर डील इज लॉस्ट। सिमिलरली आपको अक्सर ऐसे बोलते हैं मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, आप मुझे 1 हफ्ते बाद कॉल करना ना। 1 हफ्ते बाद कॉल करना टाइम से, ये आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जॉब है, वो करना ही पड़ेगा। अगर वो फॉलो अप उस दिन मिस हुआ, बिजनेस मिस हुआ, क्योंकि कोई ना कोई और जना राइट टाइम पे उन्हें कॉल कर लेगा और वो बिजनेस ले जाएगा। और इस तरह के मार्केट में कंपटीशन जो आजकल है, अगर आपने सही टाइम पे उन्हें कॉल नहीं करा तो जिसे कहते हैं ना ट्रेन मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी अगेन आई हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज, सो आई विल शेयर वन मोर। वन ऑफ माय फ्रेंड इज अ बिजनेस ओनर, owns a consulting firm. So she told that many of her deals were going cold without follow-up, and I suggested her to make a proper plan regarding that. So she created a structured follow-up system which was based on sending emails. Then अगर वो email में reply नहीं आता था तो then a WhatsApp message, and then calling. And after a few weeks, she called me and told that her deal closure rate had significantly improved, which was all just because of a proper follow-up. So this is important. It is important to follow up on time and be consistent with it. Yes, it is very disheartening at times कि हमने कॉल करा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये अक्सर हमारे सेल्स के लोगों की कंप्लेन भी होती है कि हम तो 10 बार फ़ोन कर चुके हैं। अगर वो आप फ़ोन कर रहे हैं और वो फ़ोन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, सेंड देम अ व्हाट्सएप मैसेज। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो फॉलो अप सिर्फ सेल से रिलेटेड हो। यू कैन टेल देम अबाउट एन इवेंट विच यू आर पार्टिसिपेटिंग इन, तो या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें भेज दीजिए। सो ऑल द what you're trying to do is कि आप उनके thought process में हर बार ऊपर आ जाएंगे, so that whenever there is a requirement, they will be able to call you. And these are some strategies that you can use to optimize your sales process and help you close deals faster. अब एक हाइपोथेटिकल केस स्टडी बना लेते हैं, सो दैट आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में पूरा का पूरा ये वेबिनार का क्रक्स समझा सकूं कि क्या है। सो हाउ एन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर डबल देयर डील क्लोजर्स। ठीक है, कंपनी का बैकग्राउंड हम दे देते हैं। एक हाइपोथेटिकल कंपनी है इन्फोटेक, मिड साइज IT कंपनी है जो कस्टम सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। Their clients include small and medium enterprise that want to automate and optimize their business operations. Now, in the last quarter, 2-3 quarters से they noticed कि उनकी कोई भी deal closure जो था वो उसका rate गिरता ही जा रहा था, decrease हो रहा था day by day, and their sales cycle was increasing. Okay, and so obviously they had to take action क्योंकि अगर revenue नहीं generate होगा तो team sizes को manage करना, अपने मतलब कंपनी तो लॉस में नहीं चला सकते हैं। सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड इट? दे सैट डाउन। ये सबसे पहले उनका कंक्लूजन निकला कि इनसफिशिएंट लीड मैनेजमेंट है, लैक ऑफ पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन है, इनकंसिस्टेंट फॉलोअप्स है और डिफिकल्टी इन ट्रैकिंग सेल्स परफॉर्मेंस है। वो ये भी नहीं ट्रैक कर पा रहे थे कि कौन से उनके सेल्स टीम के हाई परफॉर्मर लोग थे और कौन से उनकी सेल्स टीम के लो परफॉर्मिंग लोग थे, क्योंकि कहीं पे भी कुछ ट्रैकिंग हो ही नहीं रही थी। Okay, problem identify हो गई. Now what? What do they have to do? So they had to make some strategic plan where they followed these steps. First, they implemented a sales management tool. Now the sales team was having a lot of trouble tracking the leads. Leads जगह जगह से आ रही थी, ऐसा नहीं था कि इनफ्लो नहीं था। कोई उन्हें कॉल करके इंक्वायरी कर रहा था, कोई ईमेल पे इंक्वायरी कर रहा था, कोई व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर रहा था। So many times these leads were going cold because उनको कोई कॉल करके अपना प्रोडक्ट नहीं समझा रहा था, उनको कोई कॉल करके रीच आउट नहीं कर रहा था। So they implemented an advanced sales management system by which they could automate and streamline the sales process.
Now, they did the market research and selected the best tool and trained their sales team on how to use it effectively. After implementing the tool and automating the tracking and follow-up process of leads, every lead was recorded in one place and they knew कि उनके पास at the end of the month almost 500 inquiries आ रही थी. And imagine, inbound inquiries are not being closed, so there must be some problem. So one first step was solved. Second step was sales teams training. Now sales team को personalized communication करने के लिए आपको train करना पड़ेगा. Okay, that is very important. And customer support is different from sales team. ये आपको segregation भी अपने दिमाग में नहीं team wise बनाना पड़ेगा. So the company organized a comprehensive training program for the sales team in which they were trained in the latest sales techniques. किस तरह के words बोलने हैं, किस तरह से closure करना है, how they can be convincing. वो सारी टेक्निक्स उन्होंने अपनी टीम को सिखाई. Regular workshops, role playing sessions were conducted where the sales team practiced real life situations and scenarios, and उनमें उस तरह के सिनेरियो में उनका आंसर क्या होगा उसके लिए उन्हें प्रिपेयर कराया गया. Now the team's communication skills were also handled. अगर कोई यूएस बेस्ड क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे थे तो उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन ट्रेनिंग हुई. अगर कोई तमिल एंड साउथ इंडिया के क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे थे तो उनको इस तरह की वर्ड्स से familiar कराया गया so that they're able to answer the questions of the people. So team communication skill and objection handling techniques were improved, which increased their lead conversion. And third, lastly, data analysis and reporting. Now, once the team was trained, the leads were captured in one place, the managers and the owners of the company were able to focus on data analysis and reporting. Now, it was difficult for them to track sales performance क्योंकि कोई system ही नहीं था तो sales performance कैसे track करेंगे. ये पता ही नहीं था कि कौन हाई परफॉर्मेंस है कौन लो परफॉर्मेंस है. कुछ लोग एक डील क्लोज कर रहे थे, बड़ी डील क्लोज कर रहे थे, कुछ लोग 50-50 डील कर रहे थे बट छोटी 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 डील्स कर रहे थे और रेवेन्यू ही नहीं जनरेट हो रहा था. तो एक्चुअली बाय डूइंग ऑल दिस एनालिसिस दे वर एबल टू कैलकुलेट कि what should be their strategy for sales, who does the sales team need to focus on, किस टीम मेंबर के जिसे कहते हैं ना स्किल सेट किस तरह के क्लाइंट को हैंडल करने का था. So with the use of reporting tools, they got an overview of their team's sales performance. These insights help them manage and refine their sales strategies and continuously monitor sales performance. So after following these steps regularly and effectively, they noticed the 30% increase in lead conversion rate because sales team ने serious prospects को identify किया और उनके ऊपर focus करना शुरू करा, and by which lead conversion rate improved, and they were able to of course, also see a reduction in the sales cycle by 50%. So as they implemented these tools, due to automated follow-up, sales cycle time almost half हो गया. So this is a case study highlight, that which highlights that how you can drastically improve your sales performance by implementing the right tools and strategies in your organization. Remember, consistency and persistence are key factors. Implement, adapt, and continuously improve your approach. और ये एक दिन का काम नहीं है. ये प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज मैंने अगर सेल्स टूल लगा लिया तो ये आज ही मेरी सेल्स फटाफट विद इन 2 days मुझे ड्रास्टिक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. नहीं, दिट्स अ प्रोसेस, क्योंकि आपकी टीम को भी यूज टू होने में टाइम लगेगा, फिर उस टूल को उसके बेस्ट पोटेंशियल पे यूज करने के लिए भी टाइम लगेगा. उसके बाद आपके पास डेटा रिकॉर्ड आना शुरू होगा, उस डेटा को आप एनालाइज करके रीविजिट करेंगे और फिर अपनी सेल्स पिच, सेल्स एनालिसिस, कौन से प्रोडक्ट्स बेचने हैं, कौन से नहीं बेचने हैं, किन क्लाइंट्स पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, वो सारा का सारा डेटा आप निकाल पाओगे और उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे. सो डू नॉट थिंक कि मैंने एक सीआरएम लगा लिया अपने ऑफिस में तो अब तो मेरी सेल्स फटाफट बूस्ट हो जानी चाहिए. नहीं, इट विल नॉट स्टॉप ओवर देयर. Buying the CRM is just the first step towards boosting your sales. So with this webinar, we come to the end, and I hope in today's session you were able to learn a few things. If we have any questions, please feel free to ask.
मिस्टर कैस्पर, आपने हमें काफ़ी देर से ज्वाइन कर रखा है। आई होप दिस सेशन वाज अ लिटिल हेल्पफुल फॉर यू। Yes, Mr. Ajay, please go ahead. You can unmute yourself, sir. आप म्यूट पे हैं। अजय जी, या सर, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अजय जी, सॉरी बट हम नहीं समझ पा रहे हैं व्हाट यू ट्राइंग टू से। बहुत फेंट सर, बहुत फेंट। हेलो। हाँ जी सर, अब आया। हाँ, एक्चुअली right now वर्किंग with हेडफोन रखता है। ओके ओके, I सॉरी। want to ask one thing, जब हम एंट्री करते हैं, मैं भी आई अर्लियर आई वाज यूज्ड टू दिस पेपर, बट अभी मेरे को पूछना है, जब वो सेल्स को डालता है हॉट कोल्ड एंड या इस तरह डालते हैं, तो कोई हम लोगों को बोलता है कि चलो अगला महीना देखते हैं, अगला महीना हो सकता है, या चलो 10 दिन के बाद हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम लोग वार्म डालेंगे या कोल्ड डालेंगे, ये हॉट तो हो नहीं सकता है, तो आप हाँ मेरे उसको साइज कर सकोगे? सर, हम यूजली सजेस्ट करते हैं बॉम्ब डालने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको आउटराइट मना नहीं करा है कि उनको इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, बट प्रैक्टिकली पता है, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड क्या होता है, वो हमको बात करने के लिए बात कर लेता है, बट वो कहीं भी घूम सकता है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं सर, आप बट आप, आप समझ हाँ, रहे हो मेरी बात ना? मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, बट मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि जैसे ही आप इन चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, आप कंक्लूड करेंगे कि 90% ऑफ टाइम अगर किसी ने बोला है कि मुझे आप थोड़ी देर बाद बात करिएगा, राइट राइट। वो एट सम पॉइंट ऑफ द जर्नी वो क्लाइंट कन्वर्ट हो ही जाता है। नहीं हो जाता, उसके बाद कुछ करके तो फोन खाना छोड़ देता है। नहीं, वो तो है सर, मैं नहीं, आपको, तो प्रैक्टिकल में ऐसा हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसीलिए शायद सर मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि जरूरी नहीं है कि आपका फॉलो अप हर बार कॉल के फॉर्म में ही हो। वो फॉलो अप आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, सो दैट। नहीं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके इन सेंस में क्या करता हूँ, मैं तो अभी तो काफी सारा फोन करता ही नहीं हूँ, क्योंकि उठाना छोड़ दिया। मैं लोकेशन पहुंच जाता हूँ, अच्छा सर। मैं लोकेशन ही पहुंच जाता हूँ। चलो आप 1 घंटा में आओ, 2 घंटा में बैठा हूँ, चलो। दैट इज उनका ही वेरी टीम, कन्विंसिंग सर, हाँ, बट उनका टीम मेंबर से फोन करवाता हूँ, और हाँ कब तक आओ। हाँ तो हाँ। वो चीज में मेरे को एक चीज आपसे जानना था, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या डालें, बिकॉज हम लोग का तो रिमाइंडर आ रहा है बार बार। अभी मैं एक डाला था, चलो वो कॉल कॉल वन था, हो गया, डील डन हो गया, मैं डालना बाकी है, लेकिन स्टिल सर होपफुली मेरा एंड में प्रॉब्लम होगा, मैं डाला नहीं है उसको क्लोज करके, तो नहीं, क्लोज। बट सर मैं हमेशा ये रेकमेंड करूंगी कि जब आप उन्हें कोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, तभी करिए जब आप उनसे 7 बार फॉलो अप कर चुके हैं। 7 टाइम्स अगर फॉलो अप करने के बाद, और ये इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पे इट्स कॉल्ड 7 पॉइंट कॉन्टैक्ट। अगर आपने उनसे 7 बार किसी ना किसी फॉर्म में अप्रोच करा है और आपको नहीं मिला नहीं, है। आई हैव ऑलरेडी रीड वॉरेन बफेट बुक्स ऑलरेडी। अच्छा, मैं ओके। वारन बफेट को फॉलो करता हूँ ऑलरेडी, मैं पता कि हाँ 7 टाइम्स क्या, मैं काफी टाइम भी फॉलो कर, मैं एक्चुअली आई न्यू टू दिस इंडस्ट्री, आई एम हाँ, नॉट दिस people, पॉइंट स्टेज। हाँ तो क्या होता है ना कि 7 टाइम आप 3 बार 2 बार फॉलो अप करने के बाद ना, कहीं मिलता कभी नहीं मिलता, उसके बाद क्या होता है कि चलो वो फोन उठाना छोड़ता है, कभी लोग, अभी तो मेरा उल्टा करना शुरू किया, लोकेशन पहुंचता हूँ, उसका मेमोरी से फोन करता हूँ। तो मेरे को एक ही बट बता दो। हाँ अजय जी, मैं आपको एक दूसरा अप्रोच बता रही हूँ, और मैं मतलब हम इसको दोबारा से एड्रेस करने सकते हैं वन ऑन वन। बट जितने भी बिजनेस कोचेस हैं या जितने भी सेल्स कोचेस हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड, वो ये कहते हैं कि आप अपने लिए टाइम सेट करिए कि पहले हफ्ते में 2 बार करिए कांटेक्ट, फिर एक महीने बाद करिए, और फिर उन्हें हर महीने एक रिमाइंडर टाइप भेजिए अपना फॉलो अप के लिए। उससे ज्यादा अगर उसको जरूरत होगी तो फिर वो अपने आप आपके पास आएगा, अदरवाइज इट्स लिटरली फिर आप ही का टाइम वेस्ट हो रहा होगा उनके पीछे। अपने पास तो मैम आपको पता, अपने पास तो कोई आने वाला नहीं है, हम लोग को फॉलो अप करना ही पड़ता है।
This is ground नहीं सर, ground. आएंगे एंड मार्केटिंग का हमारा एक यूट्यूब चैनल पे बहुत अमेजिंग वीडियो है, आप प्लीज उसको देखिएगा, आप यू विल अंडरस्टैंड कि प्लीज कैसे प्लीज लीड्स प्लीज आप प्लीज अपने प्लीज पास प्लीज लेके आ सकते प्लीज आप डू शेयर विद मी द लिंक, आप मेरे को शेयर करना लिंक. हैं। हाँ मेरा बस जरूर, इश्यू ऑन द ग्रुप। इश्यू आता है, मैं एक ही इश्यू आता है कि जो फॉलो अप कर रहा हूँ, चलो अपना यहाँ लिंक से तो मेरे को तो ये आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, हाँ अभी हो रहा है, कल हो रहा है, कल होने वाला है, क्या हुआ नहीं हुआ वो तो समझ में आता है. लेकिन वो डील क्या होता है कि वहां पे फोन करता है तो फोन खाता नहीं है, या हो भी जाता है नहीं होता है, तो उसमें हम अब अभी बताओ साहब, अभी आप बोल रहे अकॉर्डिंग टू यू वी हैव टू फॉलो 7 टाइम, आफ्टर दैट वी हैव टू राइट कोड, इजंट इट? करेक्ट सर। हाँ, लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी दे दिए हैं कि यहाँ पे बिल अकॉर्डिंग टू कारपेंटर और वट एवर इंटीरियर बिल्डर, हम लोग यहाँ पे दे चुके हैं कि इतना दिन होने वाला है अकॉर्डिंग देम. बट ओके द नोटिफिकेशन कीप स्टार्टिंग, कब कर रहे हो, कब कर रहे हो, कब कर रहे हो. चलो नो नो डाउट, वो अच्छा बात ही है, हम लोग को रिमाइंडर देता है. बट करेक्ट। अदर साइड में क्या होता है कि कोई नहीं पाता. सर आई एम श्योर कहीं ना कहीं वो जाके हेल्प करेगा, थोड़ा अप्रोच में डिफरेंट करते हैं, यूट्यूब चैनल हमने अपने चैट में डाला है। सुशांता जी बानिक जी, मिस्टर बानिक, आपका भी कोई क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, मैम मैं ये कह रहा था, अभी जो आपने हमें समझाए जो भी बेनिफिट्स है वो हमें पता चल गई, इस ओके। ऐप से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, राइट मैम? हाँ मतलब ऐप से नहीं सर, यूजुअली सेल्स प्रोसेस इम्प्लीमेंट करने से। जी जी जी, तो मैं ये चाह रहा था कि मतलब हाउ टू यूज, जो मतलब हमारे ऐप से वो हम कैसे कैसे किस स्टेज पर क्या हम एंट्री करें, वो अगर आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे या वीडियो के रूप में हमें दिखा सर पाएंगे तो उसके लिए बेटर है। हम वन ऑन वन आपके साथ एक डेमो रख सकते हैं। आप अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर अगर हमें बताएंगे तो वी विल क्विकली अरेंज दैट फॉर यू। आप क्योंकि क्योंकि मैम आप ऐप्स तो हमने लॉग इन कर लिए, बस उसका जो यूजर्स है कैसे वो हम सही तरीके से उसका प्रोस्पेक्ट करेक्ट, फिल करें, तो वो चीज एग्जैक्टली, हमें सबसे जरूरी है। वेरी आफ्टर दैट गुड। मैं उस चीज को मैं ट्रैक कर सकता हूँ। सर मैं जो जो हमने आज आपको समझाया है वो एग्जैक्टली हम आपको जी यूज केसेस के साथ में अपनो आपके साथ एक 15 मिनट का डेमो शेड्यूल कर लेते हैं, और फिर वो डेमो में हम जी आपको आपकी जरूरत के हिसाब से आप कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको समझा देंगे। जी सो मैम, मैं अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर में चैट बॉक्स में मैम दे दिया। करेक्ट सर, सर हमने नोट कर लिया है टीम ने, तो दे विल क्विकली अप्रोच यू आफ्टर द वेबिनार ओनली एंड दे विल ट्राई टू शेड्यूल द डेमो विद यू। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके ग्रेट। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ओवर हियर। ओके थैंक हाँ, यू। हाँ जी हाँ आवाज आ रहा है ना? जी। हाँ जी। नहीं, मेरे को पास पूछना था, हम ये जो ऐप है हम लोग को ट्रैक करता है ना? हाँ सर, आप लोग को भी ट्रैक करता है, आपकी टीम को भी ट्रैक करता है। हाँ अगर ना, आप तो इनेबल करेंगे तो ये आपका चॉइस है। नहीं, क्या हुआ कि डे आफ्टर यस्टरडे आई हैव बीन विथ माय सीनियर वेंट टू विजयनगर, ठीक है? ओके। तो somebody some checking some रिपोर्टिंग करना, तो मैं भी पुस्तकों में क्या होता है तो देखता हूँ, तो मेरे को दिखाता रानी बागान, तो मैं उससे पूछा विजयनगर नहीं दिखा रहा है क्या? तो नहीं दिखा रहा, आप रानी रानी दिखा रहा है, अब बताओ. सर ये आप टास्क ट्रैकर यूज सेल्स ट्रैकर यूज कर रहे थे? हाँ, मेरा दो लोकेशन और मेरा डाटा ऑन था. ओके। सर मेरी टेक टीम आपको अभी इमीडिएटली कॉल करती है, आप एक बार अपना नंबर बताएंगे अजय जी? 98648 9864850255। 255. ओके सर। राइट. मैं मेरी टेक टीम से अभी आपको कोई जना कॉल करता है चेक करने के लिए कि नहीं आपकी। नहीं, एक्चुअली मैं आपको 100% नहीं बोलता, बट अकॉर्डिंग टू हर शी इज टेलिंग मी, तो मेरे को दिखाया कि रानी रानी दिखा रहा, बट आई वाज इन विजयनगर. हाँ ठीक है सर, मैं वो चेक कराती हूँ। टेक टीम रिमोटली चेक कर सकती है कि उनकी लोकेशन उन्होंने गलत बताई है कि एक्चुअली में ठीक कैप्चर हो रही है कि नहीं हो रही है। राइट राइट. ओके। ओके, Okay. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you. So with this, we will end our session, and thank you so much once again for all of you to join our webinar. And in case you have joined late and missed our webinar today, you can go on our YouTube channel. We have lots of other informative sessions also on the channel about marketing, how to do lead capturing, how to use task tracker, and how to use different strategies in your organization to improve your business. So thank you.
And see you next month. Bye. बाय मैम, थैंक यू।